Okay, guys, so in last class we understood what is stack all about, what rule it follows. Can anybody tell me which rule it follows? First Stack. enter, last out. Okay, Push and pop. in simple word, it is a type of array, or we can say stack is a vertical array. We have created an array, and let's understand is if this is the array, then this will be the index number 1, 2, 3. Let's say this is a of 4, right? This is the array. Like this, I just converted it into the vertical form. I simply represent it in vertical form. So this a of 4 is looks like something like this, right guys. So if I use index numbering for index pointing the index value, here I can use top variable, right? In the same way, here I can use top variable, right? This is what we understood. So it works on LIFO. It is a vertical array which follows LIFO rule for insert and delete and insert. And in the language of stack, insertion is called as push operation and deletion is called as pop operation. That's what we understood in the last lecture. Now if you are getting confused, let us say I am naming this array A as stack and 4. I may write this also. I can create an array of with the name of stack also, right? So for uh, for making it clear, I will use stack array name as stack, so that you will understand that I am talking about a stack implementation of an array, right? Okay, so till now we understood that we have major functions are post function, pop function, peek function, or we may write top function. We can also write top function and display function. Let's say I am going to display function. Let's say I am going to implement these functions on the stack, right? So what we are going to understand, or we are going to do, is simply implementation of stack. So what I am writing here is simply the implementation of stack program, right? I am going to write a stack program. So in the stack program, what I am assuming, that I have an array named stack, which is of size 5 here, but it could be n, right? And it looks like this way. And our and our index numbering will be used by a top. So initially when our stack is empty, the top will point to -1 location, right? It is 0 index, it is 1 index, it is 2 index, it is 3 index, it is 4 index, and so on. So we are going to implement code or pseudo code. We may write pseudo code for these. So for that only, definitely, if I am going to write the code for this, so basically I am what I will do, I will create a main function under which I will call push, pop, peek, or you may write it top, and display.
So push will be used for inserting. Push means insert, pop means delete, peek means display top item, and display function will do simply display all the value of stack, right? So we are going to do this coding. So if I am writing void main, and under the void main function I am going to call push function, pop function, peek function, display function. That means I need to define these functions individually. Now let's talk about first function we have, which is our push function. Right now we are going to generate a pseudocode for push function, right? Okay, so what I will do, I will simply write void push, in which I am defining an integer x, right? And simply I am printing enter data to be pushed, right? I am sending a notification to the user. Now I will scanf this entered item into our variable, which is x. I am storing it into the x, right? This is all. You can do it by yourself only. Now I have stored, let's say I have 3 to be inserted into the stack, so I am going to store 3 into x, right? This is what I did till now. Now before pushing, I need to check one condition. Can anybody tell me which condition is it I am talking about? कोई बता सकता है कि भाई मेरे को इंसर्ट करने से पहले क्या चीज़ चेक करनी पड़ेगी? ये मेरा एक स्टैक है और कुछ भी मेरे को इसमें इंसर्ट करना है, तो मेरे को क्या चीज़ चेक करना पड़ेगा बच्चे? empty sir. Empty. I don't need empty condition for inserting any element. अगर मेरे को इंसर्ट करना है तो मेरे को किस कंडीशन के बारे में सोचना पड़ेगा? अगर एम्प्टी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एम्प्टी है तो मैं तो डाल सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो इज देयर एनी प्रॉब्लम फॉर इंसर्टिंग? इंसर्ट करने में कोई प्रॉब्लम है क्या मुझे? तो एम्प्टीनेस चेक करना क्या मेरे लिए वैलिड है या नहीं? गैस करो बच्चे, अगर मेरी स्टैक एम्प्टी है, इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी, तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा क्या? मेरे को तो एम्प्टी चाहिए, ठीक है, मेरे एम्प्टी है तो मैं तो डाल सकता हूँ, 3 मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। तो एम्प्टी तो कोई कंडीशन नहीं है बच्चे जिसको लिए मुझे सोचना पड़ेगा। इन केस ऑफ इंसर्शन और पुशिंग एनी एलिमेंट टू द स्टैक, इज एम्प्टी कंडीशन मुझे चेक करना पड़ेगा। आपके हिसाब से मेरे को स्टैक खाली है तो मैं तो इंसर्ट कर सकता हूँ, फिर तो मेरे को कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट? स्टैक फुल है या नहीं सर? हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर। वही मुझे तो। चेक करना पड़ेगा कि भाई जो मेरी स्टैक है, अगर उसमें वो 4 साइज की है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो 4 तक भरी हुई है। यहाँ पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है 34, यहाँ पे पड़ा हुआ है 5, 70, 63। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी ये स्टैक फुल है? तो मेरे को इंसर्ट करने से पहले वी हैव टू चेक फुल कंडीशन, राइट? तो जब भी हम जनरलाइज प्रोग्राम बनाते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू implement a function for inserting any element into the stack, we need to check for full condition. Otherwise अगर मैं किसी full stack में कुछ भी insert करना चाहूँगा तो क्या हो पाएगा? Is it possible बच्चे? अगर मेरी बकेट फुल भरी हुई है तो क्या मैं उसमें और पानी भर सकता हूँ? No sir. नो सर। तो दैट्स वाई वी नीड टू चेक फॉर फुल कंडीशन। तो अगर मेरे को स्टैक को फुल कंडीशन चेक करनी है तो मुझे क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी? इफ क्या फुल फुल कब होगा ये?
अगर साइज 5 है आपकी स्टैक का, तो फुल कब होगा? कोई स्टैक फुल कब होगी? जब 4 होगा रो चार सर। तक होगा, जब 0 से 4। टॉप की वैल्यू 4 होगी, राइट? यस सर। राइट। तो अगर हम जनरलाइज प्रोग्राम बना रहे हैं, एन के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमें फुल कंडीशन कब होगी? व्हेन टॉप विल बी इक्वल्स टू n-1, राइट? यस सर, बिल्कुल सर। So before inserting any element, I will check top equals to n-1. If this holds true, I will simple prompt user that stack is full. You cannot insert any item to it. Insert any item to it. Right, guys? So before inserting, this condition should be false. अगर स्टैक का टॉप है जो आपका, वो अगर टॉप आइटम मीन्स फुल है, अगर वो यहाँ तक भरा हुआ है, इस पॉइंट पे भरा हुआ है, यानी कि टॉप इक्वल्स टू n-1 है, तो आप फर्दर इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये साइज, इसका साइज फुल हो चुका है। आपने सारी जितने भी एरियाज थे, जितने भी ब्लॉक्स थे, वो फिल्ड हैं। राइट गाइज? So that's why this block of code, this line of code is checking simply full condition, or we can say it is ensuring, it is showing overflow, right? Am I right, guys? Okay, so if this holds true, definitely your stack is full, you cannot insert it. If it is not the case, in the else part, I may insert item into the top of the stack. I can insert into the top of the stack. So what I should write into the else block? Can anybody tell me? मुझे क्या लिखना चाहिए else के अंदर? अगर मेरी ये if कंडीशन false हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है else कंडीशन में जाऊंगा मैं, else कंडीशन में जाऊंगा। तो अब मुझे बताओ else में मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी अगर आपको इंसर्ट करना है, तो आपने फुल कंडीशन चेक कर ली, फुल नहीं मिला। अब इंसर्ट करने से पहले क्या मुझे कुछ करना पड़ेगा, या डायरेक्टली मैं इंसर्ट कर दूं? क्या मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं, स्टैक ऑफ टॉप इक्वल्स टू एक्स? क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं बच्चे इस एल्स कोड में? एनीबडी? नो सर, 1 बाय 1 शायद चेक करना होगा सर। नो। इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास, can you answer me, before inserting any element, what I need to do it first? Increment top. Yes, I need to increase my top. See, अगर आप इंक्रीज नहीं करेंगे, तो जो भी टॉप पर एलिमेंट पड़ा होगा, लेट्स से 3, 5, 2 एंड 5, ये आपकी स्टैक में पड़े हुए हैं और आप इंसर्ट करने वाले हैं 3 को। तो अगर आप इस कमांड को टॉप प्लस प्लस नहीं करते हैं, तो इसका मतलब टॉप कहाँ पर होगा? टॉप यहाँ पर होगा। तो अगर टॉप यहाँ पर है और आपने ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी, लेट मी चूज अनदर कलर, अगर आपने ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी विदाउट दिस, तो होगा क्या? टॉप जो यहाँ पर 2 पे पड़ा हुआ है, 1 पे पड़ा हुआ है, अभी जो 1 पे है, तो स्टैक टॉप, स्टैक मतलब स्टैक के 1 पे क्या चला जाए? 3। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे ये ओवरराइट हो जाएगा, राइट? दैट शुड नॉट बी देयर, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? इंसर्ट का मतलब आप न्यू वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। तो 3 यहाँ पर होना चाहिए, ये करेक्ट पोजीशन है उसकी, ना कि ये। तो अगर आपने ये टॉप प्लस प्लस नहीं किया, तो वो जो एलिमेंट है वो ओवरराइट कर जाएगा एग्जिस्टिंग टॉप एलिमेंट को। राइट गाइस? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ओके, तो अभी आपको
मैंने बोला भी था लास्ट क्लास में कि भैया जब भी आपको कुछ भी इंसर्ट करना होगा, इंसर्शन के टाइम पे आपको पहले ये वाली कमांड चलानी होगी, टॉप को इंक्रीज करना होगा, इसकी इंडेक्स नंबरिंग को इंक्रीज करना होगा, तब जाके आप यहाँ पर उसे इंसर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज वो ओवरराइट कर जाएगा एग्जिस्टिंग एलिमेंट को, जो कि हम नहीं चाहते। इंसर्शन का डायरेक्टली मीनिंग होता है कि आप इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यू, किसी को ओवरराइट नहीं कर रहे हैं, राइट गाइस? सो दिस इज अ कोड फॉर आवर पुश फंक्शन, राइट? हैव एवरीवन क्लियर दिस? सबको समझ में आ गया ये? यही आपको अपने लैब में करना है बच्चे, ये समझ में आ गया आपको? सर। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लॉक आपका केवल वैल्यू को सेव कर रहा है एक्स में, जो भी इनपुट वैल्यू कर रहे हो आप उसको एक्स में डाल रहा है। और नेक्स्ट ब्लॉक इफ वाला ब्लॉक जो है वो आपका फुल कंडीशन चेक कर रहा है, कहीं फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो आप नहीं कर सकते, राइट? ऑब्वियसली बात है। और एल्स कंडीशन में आप उसे इंसर्ट कर रहे हैं, या फिर पुश कर रहे हैं वैल्यू को। कोई मुझे बताएगा ये मैंने अगर वॉइड क्यों लिखा है यहाँ पे? इस फंक्शन के स्टार्ट में आई यूज्ड void. Can anybody tell me why I used No void? return. Because this function is returning no return value. It is not returning any value, right? It is simply inserting the value into the stack. So is that clear to you guys? I think it is clear to you guys, right? Now let us move to Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. okay, now let us move to our second function we have. What is it that? That is our pop function. So let us define our pop function. Guys, this color is visible to you or I should select darker color? No, sir. ठीक है, sir. Let me choose another color so that it will be visible to all you guys. Okay, now I am creating a pop function for our program. So pop function, I am going to write, I will use void pop. Inside it I am defining int item. I will use this variable in future. Now before popping any value, before popping any item from the stack, what I need to do? First I need to check for which condition. If this is the stack and I am going to pick or pop an item from the stack, can anybody tell me what I need to check? Top value. Yes, top value for which condition? Before deleting any item from any data structure, you need to check first for which condition? Underflow condition, right? Have you remember, guys? You need to check emptiness condition or you need to check underflow condition. So in this case, what will be the underflow? When will be that underflow? When top will point to -1, right? So in this code I am checking emptiness condition or for avoiding our underflow, because if you are going to insert at this position, this is not a legitimate position, it is theoretical position and it will be in garbage, right? So before deleting any item from the stack, you need to check for top equals to -1. Then if this is the case, अगर top आपका -1 के बराबर है तो simply आप कहेंगे you cannot delete anything from stack because it is
it is empty, because it is empty, right guys? So we will put this message on the screen. And in the else part, if this is not the case, obviously अगर टॉप आपका -1 पे नहीं है, टॉप की वैल्यू अगर ये है 1 है, इसका मतलब यहाँ पर 2 आइटम है पड़े हुए। अगर टॉप की वैल्यू 1 है, इसका मतलब यहाँ पर भी आइटम है, यहाँ पर भी आइटम है, राइट? राइट, तो उस केस में ये फॉल्स हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है, आपका जो आपका कंट्रोल है वो एल्स पे चला जाएगा, क्योंकि इफ की कंडीशन फॉल्स सेट हो चुकी है। तो आप एल्स में क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू? You will simply Pop. pop item from top of the stack. Is this statement correct, guys? Item equals to stack top. Is this correct? मैं क्या कर रहा हूँ इस स्टेटमेंट में? मैं इस स्टेटमेंट में जो भी वैल्यू टॉप पर पड़ी हुई है, जहाँ पर टॉप है, जो भी वैल्यू यहाँ पर अगर मान लो 5 पड़ा हुआ है, तो मैं इसको पॉप कर रहा हूँ, इसको स्टोर कर रहा हूँ किसमें? आइटम में, ताकि मैं इसको फ्यूचर यूज कर सकूँ, है ना? ऑब्वियसली बात है, मैं पॉप कर रहा हूँ किसी वैल्यू को तो किसी पर्पज के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल आइटम में सेव कर दिया। अब मेरे को क्या करना होगा? इन केस ऑफ डिलीशन मुझे क्या करना होगा? Pop the item. पॉप तो हो गया आइटम बच्चे, पॉप तो हो गया, वो आइटम में आ गया, आइटम में आ चुका है, तो वो सेव टॉप हो को चुके। डिक्रीज कर देंगे। यस, वी विल डिक्रीज टॉप, we will decrease top. So after this statement I should write top minus minus, so that logically just a minute, so that logically your stack will be reduced to size n minus 1. If 2 is the size, so now effectively your stack should be of size 1, because one item has been deleted. एक आइटम आपने पिक कर लिया, उसमें से डिलीट कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है आपको साइज को रिड्यूस करना होगा, अदरवाइज वो लॉजिकली वो अभी भी दो की ही स्टैक होगी। तो इसलिए आपने टॉप की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया, दैट मीन्स आपने साइज को रिड्यूस कर दिया उसके। तो अब टॉप एलिमेंट पॉइंट करेगा यहाँ पर, इस पॉइंट पर। ओके, तो अगर यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप चाहो तो प्रिंट भी करा सकते हैं जो पॉप्ड आइटम है। तो यू विल सिंपली राइट printf popped item is %d item, and then you can close else part. So is that simple? सिंपल है बच्चे, ये सिंपल सा कोड है ना? ठीक है, तो अभी आप एक जनरलाइज्ड फंक्शन बना रहे हैं। तो ये तो था आपका पॉप फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या क्या है देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन वी हैव इज pop, I think, no, peak. So let us define peak also. Okay, so next third function I have peak, or you can write it top also, both are the same. We are using peak, right? So we will define it void peak, or you may write top, whatever you like. I will use a variable int item. So before peaking, I also need to check for which condition, fullness or emptiness. Fullness. Why so? Peaking means मेरे को टॉप से एक आइटम को एक्स आइटम है, इसको मेरे को केवल डिस्प्ले करवाना है। तो ऑब्वियसली बात है, मैं टॉप के एलिमेंट को डिस्प्ले कराने वाला हूँ विदाउट डिलीटिंग। तो अगर मेरे को टॉप से कोई आइटम पिक करना है, पॉप करना है या फिर पिक करना है,
या फिर टॉप करना है जिसे हम बोल रहे हैं, उसमें मेरे को कौन सी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी? अंडरफ्लो और ओवरफ्लो, एम्प्टीनेस और फुलनेस। ओवरफ्लो। ओवरफ्लो। ओवरफ्लो क्यों बच्चे? अगर उसमें आइटम है तो ऑब्वियसली बात है मैं उसे पिक कर सकता हूँ ना, तो उसको तो मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। मुझे चेक तो ये करना है कि कहीं मेरी जो स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो मैं उसमें से कुछ पिक नहीं कर सकता ना भाई। पिक का मतलब क्या है कि मैं रीड करने वाला हूँ टॉप एलिमेंट को। अगर मेरी एरे, मेरी स्टैक ही एम्प्टी है, मेरी स्टैक अगर एम्प्टी है तो मैं क्या क्या उठाने वाला हूँ यहाँ से, क्या डिस्प्ले करवाऊंगा? कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाऊंगा। तो in this case also, in case of peak also, we need to check emptiness, right? So we will check it by using simple top equals to -1। अगर ये है तो simply notify कर दे you cannot, या फिर nothing is there to peak, nothing is there to peak, राइट। और अगर ऐसा नहीं है, एम्प्टी नहीं है, वहाँ पे कोई ना कोई वैल्यूज़ हैं, तो सिंपल सी बात है, एल्स में मैं डायरेक्टली प्रिंट करा दूंगा। क्या प्रिंट कराऊंगा बच्चे? कैन एनीबॉडी टेल मी? सिंपल स्टैक ऑफ टॉप, राइट गाइस? इज दैट क्लियर टू यू? भाई अगर Yes, एम्प्टी sir. है तब तो मैं उसमें से कुछ नहीं रीड कर सकता, बट अगर एम्प्टी नहीं है तो ऑब्वियस बात है मैं उसे रीड कर सकता हूँ। तो मैं डायरेक्टली प्रिंट एफ में उसको रीड कर लूंगा, डिस्प्ले करवा दूंगा यूजिंग टॉप। या क्लियर है बच्चे? यस सर। कंफ्यूज मत होना, ये जनरलाइज प्रोग्राम है इसलिए आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि टॉप क्या चीज़ है। टॉप कुछ नहीं है, वो इंडेक्स नंबर है जिसका यूज़ करोगे आप किसी भी आइटम को एक्सेस करने के लिए, राइट? तो जब भी आप स्टैक में उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम टॉप यूज़ करते हैं तो टॉप के थ्रू ही हम एक्सेस कर सकते हैं, और वो भी किस मैनर में? लीफो मैनर में या फिर फीलो मैनर में। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना बच्चे, ठीक है? तो यहाँ पर हम उसे सिंपल डिस्प्ले करा रहे हैं टॉप एलिमेंट को, ठीक? नाउ कम टू द fourth function I have, fourth one I have is display function. So display is simple, display is very simple, right? Void display, क्या करना होगा मुझे? एक इंटीजर वेरिएबल ले लूंगा मैं i, और एक सिंपल सा लूप चलाऊंगा फॉर i इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट। ये आप बताएंगे मुझे, यू विल टेल मी व्हाट विल बी देयर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, i माइनस माइनस प्रिंट f %d stack of I and close the parenthesis. Now can anybody tell me what I should write here? मेरी एक स्टैक है जिसमें कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, लेट्स से ये 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 3, 1, 5, और मुझे इनको डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए मुझे को क्या करना पड़ेगा बच्चे? कैन एनीबडी टेल मी? मुझे ये एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है, तो ऑब्वियसली बात है जब मैं डिस्प्ले करूंगा तो एक एक करके पॉप करूंगा। पहले 5 पॉप आउट होगा, देन 1 पॉप आउट होगा, देन 3 पॉप आउट होगा। मेरे डिस्प्ले में ये आना चाहिए, राइट? तो जब मैं लूपिंग स्टार्ट करूंगा इसके लिए तो मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पर क्या लिखना चाहिए बच्चे इस डॉट 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 में? व्हाट आई शुड राइट हियर? यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा? 3 सर। 3 क्यों? 2, sir. 2 लिखना होगा इन केस ऑफ जो हमारा ये एग्जाम्पल हमने ये लिया है Yes, sir, एग्जाम्पल 2 के हो। तौर पे। बट अगर मैं एक जनरलाइज प्रोग्राम बना रहा हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? n सर n सर रखना पड़ेगा। n-1 हाँ, किसी ने टॉप बोला n बच्चे, -1 सर। टॉप बोला किसी ने।
तो मुझे टॉप से ही इसे इनिशलाइज कराना पड़ेगा, क्योंकि जो चाहे वो n-1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे n-1 हो, ये सब किस में स्टोर्ड है? आपके टॉप में। भाई टॉप क्या सिग्निफाई करता है? टॉप हमेशा टॉप एलिमेंट का इंडेक्स होल्ड करता है। स्टैक के केस में टॉप ही तो आपके पास एक आइडेंटिफायर है, टॉप ही तो आपके पास एक पॉइंटर है जिससे आप यूज कर सकते हैं इंसर्शन एंड डिलीशन के लिए, राइट? तो Yes, आप, sir. हाँ, तो आप जनरल प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको जनरल टर्म्स का यूज करना पड़ेगा जो जनरली यूज होती हैं। तो आपने कहा कि भाई 3 आइटम है, 3 1 2, और ऑब्वियसली बात है, अगर ये स्टैक है तो टॉप यहाँ पर होगा इस समय, टॉप की वैल्यू 2 होगी, 2 1 0, तो टॉप यहाँ पर होगा इस समय। तो जब मेरे को प्रिंट कराना होगा तो मेरे को जो लूपिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी। पहले मैं इसको पिक करने वाला हूँ तो मेरे को पहले इसे एक्सेस करना है, तो टॉप से ही तो एक्सेस होगा। भाई मुझे पहले 3 को एक्सेस करना है, तो ऑब्वियसली बात है आई की वैल्यू टॉप से इनिशियलाइज होनी चाहिए। तो आई शुड बी इक्वल्स टू टॉप, एंड आई कब तक चलेगा ये? जब तक कि वो यहाँ पर ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, ठीक है। और आई माइनस माइनस एंड प्रिंट एफ स्टैक ऑफ आई। तो जब इस केस में जब टॉप की वैल्यू 2 होगी, जब टॉप की वैल्यू 2 होगी तो 3 प्रिंट होके आएगा पहले, फिर दोबारा आएंगे यहाँ पर, तो टॉप -1 हो जाएगा, है ना। आई माइनस माइनस मतलब आई की वैल्यू रिड्यूस होगी, तो आई की वैल्यू 2 थी तो 1 हो गई। तो अब वो किसे 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 प्रिंट करेगा? 1 को। फिर टॉप की वैल्यू ये हो जाएगी नेक्स्ट इटरेशन में 0, तो वो करेगा 2 को प्रिंट करेगा। और फिर जब वो नेक्स्ट टाइम यहाँ जाएगा तो पाएगा क्या कि ये कंडीशन फॉल्स सेट हो गई है, तो वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो आपका जो स्क्रीन पे आएगा वो आएगा 3 1 2, राइट गाइस? इज दैट क्लियर टू यू? क्लियर है बच्चे? Yes. ठीक है। तो ये अभी तक टिल नाउ आई जस्ट define individual function, right, which I will use in inside our main function, right? So if I want to write a complete program for that, apart from these, what I will do, I will simply write a program like this, right? Or before this I could write also hashtag define n5. That means I am defining the value of n as a 5. That means our stack will be of size 5. And globally I am saying defining int stack n. It is a generalized form. You can directly give 5 here also, but that will be not a generalized case. In the generalized case you will use n here, right? Because n could be 5 3 7, whatever you like. And whenever you want to implement a stack of 10 elements, you will simply change here. You need not to change here all the time, right? So that's why I initialized, or I defined integer of stack n, right? And in the beginning I will, assuming that our stack will be empty, so top will be initialized by -1. After that, this void function comes into play, right? So inside the void main, what I am going to use, I am going to use switch cases, right? Before I am going to take input from the user what he wants to do, right? So I am defining a character ch integer type, clear screen, that you already know. Now do, I am using do while loop. Do printf, enter your choice, 1 for push, 2 for pop, 3 for peek, 4 for display, right? And I stored this choice in choice variable which I used here, ch, right? Now I started with switch cases. In the switch cases, everyone knows how to use switch cases. Do you guys know that?
Hello, do you all Yes, know? sir. Okay, now because I have already defined our individual function here, our individual function definition here, already defined it. Now I can use switch cases. In the switch cases, or I will pass ch as a argument. Whatever will be the choice of user, I will pass it to switch function. It will, according to ch value, it will call individual functions accordingly, right? So in case 1, if ch is 1, it will, we will call push function here. After that we will break the switch case, right? Next, if the choice is 2, I am going to call pop function, right? It will, after that we may return. In the next, if the choice is 3, that means user want to pick an item from the top. And if the choice is 4, user want to display the items present in the stack. And if those all are the not inputted values, input values is differ from these 1 2 3 4, then default case will be called by switch function, and which will simply say that invalid choice, you have entered invalid choice, right? See here. And after do while ch is not equals to 0, वो आपका गेट कैरेक्टर करता रहे, राइट? तो ये समझ में आ गया बच्चे? ये रियल में आपका पूरा जो प्रोग्राम है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? गाइस, No, No, sir. sir, no problem. ठीक है, आपको इंडिविजुअल हमने फंक्शंस पहले क्रिएट कर दिए और उनको स्विच केसेस में कॉल कर दिया। तो आपको जब लैब होगी तो उसमें एक प्रोग्राम आपको ये भी बनाना पड़ेगा कि स्टैक को इम्प्लीमेंट करो यूजिंग एरे, और उसका एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाओ जिसमें आप यूजर से इनपुट लेंगे, राइट? जैसे हम लोग इसमें यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जैक्ट कोड नहीं दिया, यहाँ पर हमने सिंपल उसका स्यूडो कोड दिए हैं, बट लॉजिक यही रहेंगे आपके, राइट गाइस? Okay, sir. Okay, if everything clears to you, we have implemented stack using array, right? In the next class we will understand infix, prefix and postfix expression using stack, guys. Okay, that's all for today. Thanks guys.